वक्त हो रहा है अब आपके ट्वीट्स का एंड वील स्टार्ट ऑफ विद दिस फर्स्ट ट्वीट व्हिच विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू पे आवर ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम। फरीद खान ने हमें ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी रॉजर फेडरर का इम्पैक्ट ऑन टेनिस, इस पे बात करें। मुझे पता है आप लोग क्रिकेट पे बात करेंगे, स्कॉट सिलेक्शन पे करेंगे, बट प्लीज़ डू कीप अ फ्यू मिनट्स फॉर हिम टू। फरीद, thank you so much for raising this question because I am a huge Fedhead, massive Fedhead, and I still remember the first Roger Federer match I saw was that Pete Sampras versus Roger Federer matchup in the Wimbledon. और मैं उससे पहले Pete Sampras का बहुत बड़ा fan होता था obviously, but Pete Sampras was towards the twilight of his career, and then उसके बाद Roger Federer was there, और जो एक standout feature tha was the elegance with which he went about everything. Absolutely, I think वो elegance और aesthetically pleasing tennis players में तो you can argue if there are better tennis players in history than Federer, but in terms of just sheer aesthetics, Federer, I think even Djokovic और Nadal fans would agree कि in terms of just sheer aesthetics, Federer is better. दूसरी चीज़ फरीद ने पूछा कि क्या impact है रॉजर फेडरर का on tennis. So basically unless you have discovered something, ठीक है, no one else will follow you to that place, ठीक है। अगर क्रिस्टोफर कोलंबस यूएसए डिस्कवर नहीं करता तो वहाँ पर सेटलमेंट नहीं होती, ठीक है। What I am saying is कि sometimes in sports, ठीक है, players discover a level of playing where then other players have to follow to even be considered on that level, ठीक है। For example, सैम्प्रस की आपने बात की, व्हेन ही वन द यूएस ओपन, जो उसका आखिरी यूएस ओपन था इन हिज 30s, अर्ली 30s, तो एवरीवन वाज लाइक वो 30 साल से ऊपर को बंदा ग्रैंड स्लैम जीत गया। एंड देन फेडरर कम्स इन एंड वो 40 साल की उम्र तक खेलता रहा। ही वन ग्रैंड स्लैम, ही वाज क्लोज टू विनिंग अ ग्रैंड स्लैम एज लेटली एज 2020, 2019। ही इज वन अ ग्रैंड स्लैम नियरली व्हेन ही वाज 36, 37 years of age, 38 even was close to winning. So those standards were set by him. So now basically when Nadal or Djokovic or anyone wants to achieve those levels, that standard of tennis has been taken to that level by Federer, ठीक है। Eventually जब आप आर्ग्यू करेंगे, डेटा नंबर्स देखेंगे तो आप कहेंगे कि मे बी Nadal is better, maybe Djokovic is better, but would that be the standard of tennis if Federer wasn't there? I'm not sure. Because he is basically, and the same thing applies to many footballers जिनको उतना उसका क्रेडिट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल I was always of the opinion कि Maradona is better than Pele, ठीक है, but then you go and you know objectively look at it, तो Pele नहीं होता तो there were a lot of things in football or positioning senses or how a striker plays or how a forward plays if Pele wasn't there. Similarly अगर Maradona ना होता तो आपका नंबर 10 या वाइड फॉरवर्ड्स का रोल वो ना होता। रोनाल्डो ना आता तो नंबर 9 जो आपने ऑनरी देखा, जो आपने गुएरो देखा, जो आप सुआरेस देखा या जो बेंजीमा करता है वो नहीं होते, क्योंकि उससे पहले बेयर ऑफ टाइप के थे, exactly. So I mean there are some sports persons who completely changed their sport. Serena Williams did it for women's tennis and Federer did it for men's tennis, and both of them announced their retirement. It's very sad. Pretty much at the same time. End of a glorious era of tennis. अभी भी I know Nadal and Djokovic are there, लेकिन Roger Federer will always be my goat. And I mean getting really emotional over here. चलते हैं जी बाकी ट्वीट्स की तरफ. Let's have some of the other tweets. Obviously सबसे ज़्यादा ट्वीट्स हमें पाकिस्तान टीम से रिलेटेड आए. ये जी वोट को इज्जत दो 99 पूछ रहे हैं कि खुशदिल को खिलाने के बेसिस क्या है। इफ्तिखार का ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार की तो ऑस्ट्रेलिया में पास परफॉर्मेंस है, इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट नहीं है, बट खुशदिल, आज़म खान और सलमान अली आगा बेहतर ना होते। सलमान अली आगा कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन द सेम रोल एज खुशदिल, तो उन्हें तो आप इस वक्त तरह साइड पे करें। आज़म खान पे हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इवन इन दैट स्फेयर आई थिंक आज़म एंड खुशदिल, व्हाट डू यू No, I don't think they're the same player. I think आज़म को अगर आपने टीम में डालना है तो his position should be के आज़म को आप नंबर 4, 5 या 3 इधर खिला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप लो वैल्यू विकेट यूज़ करें then he can come in at number 6. आज़म takes a little bit of time to get settled, then he can hit out big. तो दोनों का रोल डिफरेंट है। अगर आपने आज़म की डिस्कशन करनी है तो आज़म की डिस्कशन शुड बी फॉर योर अपर मिडल ऑर्डर रादर देन योर लोअर मिडल ऑर्डर। ठीक हो गया। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ. लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. इनके दो सवाल हैं. उनका जी ऑस्ट्रेलिया के टूर्स में रिसेंटली अगर आप देखें तो as far as I know our batting has not been that much of a problem. Our bowling on the other hand has been struggling with a high
on confidence with a high on confidence bowling unit, do you think it will change this time? जरा नीचे चलते हैं तो इनका दूसरा ट्वीट भी है. इनका दूसरा ट्वीट हमें कहता है कि additionally question है, can we afford 2 spinners in the lineup on Aussie tracks, or should we play 4 seamers over rate issue? And Nawaz and Shadab good enough to walk into the 11 even if pitch isn't conducive to spin. अच्छा, मैं पहले दूसरे सवाल का जहाँ पे जवाब आपको देता चलूँ कि शादाब और नवाज़ की वजह से आपके पास सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त है कि आप 4 सीमर्स खिला के भी इन लोगों को खिला सकते हैं, क्योंकि इफेक्टिवली 7 पर पोटेंशली छोड़ दें, लो वैल्यू विकेट वगैरह को छोड़ दें, इस वक्त बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी को आप छोड़ दें. अगर 7 पर शादाब आ भी रहे हैं तो 8 पर मोहम्मद वसीम, 9 पर शाहीन शाह, 10 पर नसीम शाह, 11 पे हारिस रऊफ. यू स्टिल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग योर 4 सीमर्स इन. मैं आपको अब सिर्फ इसको आप इस तरह इमेजिन करें, जो आपने भी स्क्वाड सेलेक्ट किया ना, ये हो गई है सेलेक्ट, ठीक है. इसको कैसे यूज़ करना है? इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपका टॉप 3 हो, ठीक है. उसके बाद 4 पे आ रहा है आपका शादाब, 5 पे आ रहा है आपका नवाज, विच मीन्स कि आपके इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ में से आप 2 खिला सकते हैं, और जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं. अगर आपने एक्स्ट्रा बॉलर नहीं खिलाना तो आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला सकते हैं. ऑप्शंस आपके पास हैं. हाउ यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज गोइंग टू मैटर, नॉट कि क्या स्क्वाड पिक हुई है. वो 11 पिक करने में 11 पिक कर ली, उसके बाद उनको खिलाना भी उस तरह, ये नहीं कि बस पिक कर ली और वो बस खिला दी. ठीक हो गया. आपका जो पहला सवाल था कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के बैटर्स ठीक खेलते थे, बॉलिंग का इशू था, आई थिंक दैट वुड प्रॉब्ली बी ट्रू ऑन द टेस्ट साइड ऑफ थिंग्स. बट अगर आप लास्ट वो 3 T20s खेले, विद द एक्सेप्शन ऑफ बाबर एंड इफ्तिखार, we didn't get many runs. Didn't get many runs. Also, the fact that Pakistan's bowling then was a little out of form, not just that Australia series was out of form, and also उसके बाद काफ़ी changes आए हैं, और जो आपके out of form थे वो inform हो गए हैं. Injuries जो 1-2 When was Pakistan's tour to Australia? This is I think 2020, 2019-20. से खैर जो भी है, it's a considerable period of time. Yeah. So I mean I think हमें ज़रा थोड़ा सा I think fresh 2-3 years now. Okay. Yeah. चले अगला सवाल लेते हैं जी. Let's have the next question on screen. Biggest question, how Khushtil mix into the squad considering World Cup in Australia? वो प्रॉपर टुल्ला हैं, वो मोहल्ले की टीम में भी नहीं आ सकते. Haris inclusion ahead of Saifi considering experience and performance in T20s. हमने पहले दोनों सवालों का जवाब दे दिया. उस्मान ahead of धानी और इब्रार. मैं इब्रार को तो अभी इस वक्त इस क्वेश्चन में नहीं डालूंगा, लेकिन उस्मान कादरी, let's talk about his selection overall. Let's be honest, ठीक है. इस पोजीशन के ऊपर अगेन नॉट इंडिविजुअल्स, आपको या फास्ट बॉलर चाहिए था या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था.